Okay. I hope all of you know what is the Nernst equation, the formula that E cell is equal to E naught cell minus 0.059 N log the concentration of product divided by the concentration of reactant. ठीक है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स की स्टोइचियोमेट्री का कोएफिशिएंट ऊपर हो जाएगा द पावर्स, एंड हियर यू विल हैव द रिएक्टेंट्स, the stoichiometric coefficients of the reactants. Yeah, so this is the formula for Nernst equation. Here n is the number of electrons. ठीक है, concentration is taken in moles per liter, or capital M, that is molarity. After this done, I will start with a few questions. I will do a few questions, and after that, I will give you guys to do. Yes, sir, done. Done writing this? Okay. Yeah. So here we have calculated the EMF of the following cell at 298 Kelvin. This question is of 2 marks, by the way. ठीक है, आप जैसे ही नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ना, इफ यू राइट द नर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट हाफ मार्क्स ऑलरेडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर व्हाट इज द इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या बनेगा. So at anode we are going from Fe to Fe2 positive. That means we'll have Fe, ठीक है, plus here the reactant is going to be H positive, and it is giving us Fe2 positive plus H2. ठीक है, Fe2 positive plus H2. Now in order to balance this, I will write here 2H positive. Here, if you calculate the number of electron will be equal to the sum of stoichiometry multiplied by the charge. So this सर will be equal. Yes, yes, sir. Salan, tell me. सर एक डाउट है, वो प्लैटिनम क्यों है एंड में? प्लैटिनम जो है एंड में, ये इक्वेशन क्या? लास्ट टाइम शायद आप लोगों को बताया था, ये प्लैटिनम जो है ना, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्शन टू अकर. ओह सर. बिकॉज, है ना, आई थिंक जो हम लोग ये किए थे ना फर्स्ट क्लास जो थी, यस सर. है ना, तो यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे बताया था आप लोग को कि हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम रहेगा. ठीक है, और अगर H2 आ गया तो प्लैटिनम कॉमा H2 हो जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो गैस है, सिंस गैस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तो इट जस्ट प्रोवाइड्स द सरफेस ताकि वहां पे गैस आ सके, प्लैटिनम पे चिपक सके, एंड देन वो फिर वापस सोल्यूशन से आपके पास प्लैटिनम वायर में आ जाए, या फिर प्लैटिनम वायर से सोल्यूशन में चला जाए. ठीक है, so n is equal to 2 here. Now for this equation, also one more thing is very important. You write the Nernst equation for a chemical reaction. आप केमिकल रिएक्शन के लिए ही क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log concentration of H positive to the power 2. Sorry, my bad. Concentration of Fe2 positive. Concentration of Fe2 positive multiplied by the, not the concentration, but rather the pressure of hydrogen gas divided by the concentration of H positive squared. Now, I suggest students to solve the log part separately. जैसे ही आपने log यहाँ पे लिख लिया ना, you will plug in the values. Fe जो fraction है ना, fraction को कम से कम आप solve कर लीजिए. तो Fe2 positive है 0.01. 0.01 multiplied by H2 is 1 bar. Divide by the concentration of H positive is 1, तो 1 का स्क्वायर बनी रहेगा. So here you can see that this value will be equal to 10 to the power minus 2. ठीक है, and log of 10 to the power minus 2, it is equal to minus 2. आपको ये पता है? Arslan and Krishna, please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है, now we will just plug in the values. E naught cell is 0.44,
minus 0.059 divided by 2 multiplied by minus 2. So 2 and 2 will be cancelled. Minus 1 into minus will be plus 1. So this will be equal to 0.44 plus 0.59. Okay, you can, sorry, 0.059. You can add both of these and send the answer on my Zoom chat. आसमान एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज 0.059। हाँ सर, 0.059। हाँ तो हाँ तो सही तो है ना। कैसे सही है? और ठीक है, मैं कृष्ण प्रिय आपका सही नहीं है। हाँ ठीक है आपका सही है, मैं बट मसला। जी अच्छा हाँ, ये अच्छा। 0.499 हो जाएगा वोट्स। ठीक है, इस तरह के सवाल कर लेंगे ये सोनो भी सलमी। यस सर। चलिए हम देते हैं, देखिए एक चीज जो आपको ना, अच्छा चलिए एक और किस्म का हम आपको सवाल करा देते हैं। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या है ये देख लीजिए आप लोग। सी हियर ई नॉट सेल नहीं दिया हुआ है ना। ई नॉट Na2 पॉजिटिव और ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो ई नॉट सेल के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड में निकल 2 पॉजिटिव से निकल, तो निकल वाला कितना, -0.25 माइनस एनोड, एनोड में क्या हो रहा है, -1.66। ठीक है, तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट विल बी -1.66 माइनस 0.25। तो ये आ जाएगा आपके पास ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1 एंड 6 में तो गया 4, 1.41 वोल्ट्स, है ना। अब बाकी कर लेंगे आप लोग, यू कैन राइट द रिएक्शन, रिएक्शन में आप लोगों को ध्यान देना बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहीं से आएगा। ठीक है, चलिए यू हैव द सेल, सेल से सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें सिखाया हुआ है आपको, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू द नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आई हैव गिवन यू द ई नॉट सेल। ई नॉट सेल भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, चलिए प्लीज सॉल्व दिस।
Also, you will send the answer on WhatsApp. Okay, Aslan, I've got answer from you. Krishna Priya, I'm waiting for answer. ना, गलत रिएक्शन लिखो पहले असलान। असलान रिएक्शन लिखा आपने? नहीं सर। रिएक्शन, अरे नर्स्ट इक्वेशन रिएक्शन के लिए ही लिखा जाता है। यू कैन नॉट राइट द नर्स्ट इक्वेशन एक्सेप्ट इफ यू हैव दी। आपके पास अगर इक्वेशन नहीं है तो फिर आप नर्स्ट इक्वेशन लिख, आपके पास मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है तो नर्स्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते आप। 1 सेकंड सर, लिख के फिर से करता हूँ। लिख के देखिए, आप जैसे लिखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कृष्ण प्रिया, मैं ऑडिबल? Yes, sir. आर यू डन? डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन? I'm doing it, sir. डिड यू राइट द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन? I didn't write the reaction, sir. No, I'm just substituting the value and doing it. नो नो, यू हैव टू राइट द रिएक्शन, Okay. ठीक है। यू हैव टू, अदरवाइज। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कृष्ण प्रिया? 6. हाँ ठीक है, तब मे बी यू आर डूइंग राइट, बट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए कितना होगा? 2. ठीक है, हाँ देन इट्स फाइन।
कृष्ण प्रिया, यू डोंट हैव अ फोन? नो सर। ओके फाइन। असलन क्या रिएक्शन वगैरह लिखा आपने? यस सर। बताइए क्या है रिएक्शन। 2Al plus 3Ni2 plus is टू 2Al3 ए plus एल is ए 3 भाई 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 भाई, 2 Al प्लस 3 3Ni2 plus 3 Ni2 प्लस गिव्स 2Al3 plus। Al3 प्लस। आपको समझ में आ गया ना कहाँ मिस्टेक होगी? यस सर। हम्म, just इसमें 3 से n रिएक्शन तो क्या, एंड प्लस 3 Ni है ना? तो रिएक्शन एटलीस्ट आपकी, मतलब यू शुड हैव इट इन योर माइंड, या फिर अगर लिखा होता इट विल बी बेटर। आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। सो नंबर ऑफ यस सर। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द सर स्टोइचोमेट्रिक 6। ऑफ, हाँ 6, ये भी दिख गया ना? ऐसे 3 into 2, अच्छा। राइट। हम्म। हम्म। अब उसके बाद हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 into log of concentration of Al3 positive डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव के लिए क्यूब और Al3 पॉजिटिव के लिए स्क्वायर। यू विल सॉल्व इट। Al3 पॉजिटिव इज 10 to the power -3 squared divided by nickel is 0.1, that means 10 to the power -1 cube. So this will be equal to 10 to the power -6. This will be equal to 10 to the power -3. This will be equal to 10 to the power -3. Make sense? यस सर। ठीक है, तो ई नॉट कितना आया था हमारा? 1.41 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6, पता नहीं आज, इंटू लॉग ऑफ, एक सेकेंड, log 10 to the power -3 will be equal to -3, है ना? तो -3 2 जा, this will be equal to 1.41 माइनस 0.03 करते हैं इसको हम अप्रोक्सीमेटली। 0.06 इसको बोल सकते हैं 0.03, so this will be equal to 1.44 volts। ठीक है, मेक सेंस ये सोना प्लीज मी? यस सर। ठीक, चलिए एक और सवाल करते हैं। Try this.
We have got an answer. Okay, Krishna Priya. Yeah, I think that is correct. Rasman, what about you? यस कर सर रहे हैं कर आप? रहा हूँ। ओके। Yes, Aslan, what happened? यस सर लॉग में हूँ सर, वही कर रहा हूँ। अच्छा, लॉन्ग में ज्यादा हाँ दिक्कत तो यस। नहीं होना चाहिए, 10 to the power से ना बस। जी, थोड़ा ये बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, सिर्फ वो नहीं करना आता मुझे। केमिकल। बैलेंसिंग ये सब में, केमिकल बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है मेरा। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा इस बार डिटेल से पढ़ा बता देते हैं आपको, ठीक है।
रिएक्शन आप अभी भी नहीं लिख रहे हैं। मतलब देखिए, जो आपका टाइम है ना सोचने में, जितना टाइम जा रहा है ना, ट्राई टू पुट इन दैट ऑन राइटिंग द रिएक्शन। देखिए, अगर आपसे रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा जा रहा, दैट्स ऑल्सो फाइन, आप एनोड लिखिए। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, बट आप 10 सवाल इस तरह के कर लेंगे ना, एनोड और कैथोड का अलग लिख के फिर उसको ऐड करेंगे, फिर आपको एक समझ में आ जाएगा। बिकॉज 10 से ज्यादा आपके पास रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं होंगे। एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, Zn इज गिविंग Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इन कैथोड व्हाट इज हैपनिंग, कैथोड वाला थोड़ा सा आपको ये लग सकता है, आपका क्या बन रहा है, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। बट H प्लस से तो H2 नहीं बनेगा, यू नीड टू बैलेंस दिस, सो 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। मेक सेंस? क्या ख्याल है? यस सर। अब इसके बाद आपको ऐड कर देना है। वंस यू ऐड बोथ ऑफ दीज, एनोड एंड कैथोड, ये जब तक आप नहीं करेंगे, फिर वो जो फास्टनेस आती है ना, कि आपने सेल को देखा और उसी से रिएक्शन लिख लिया, वो नहीं आएगा। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ राइटिंग एनोड कैथोड 10 बार करेंगे। 11th टाइम यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, मे बी बिफोर ऑल्सो, बट आई विल से एटलीस्ट डू इट 10 टाइम्स, ताकि कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। मेक सेंस? अब क्या हो जाएगा आपके पास, Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Zn 2 पॉजिटिव प्लस H2। सो E cell is equal to E naught minus 0.059 divided by number of electrons. As you can see, there are 2 electrons, into log of the concentration of Zn 2 positive into the pressure of H2 divided by the concentration of H plus squared. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ई नॉट सेल हम लोग के पास नहीं है, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड तो 0 है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.76, ये आपके पास आ गया, प्लस 0.76 वोल्ट्स। नाउ विल डू द लॉग थिंग। सो Zn के पास है कितना, 0.10 to the power -3 multiplied by pressure of H2 is 1 divided by H plus is 10 to the power -2, and this will be squared. This will be equal to 10 to the power -3 divided by 10 to the power -4. -4 will go above, it will become +4, and the value will be 10. तो log 10 होगा आपके पास, which will be equal to 1. Now I can directly plug in the value, 0.76 minus 0.059 divided by 2. तो 0.059 को हम approximately 0.06 ले सकते हैं, and this will be equal to 0.03. So 0.76 minus 0.03, which will be equal to 0.73 volts. Make sense? Yes or no? Please tell me. यस सर। चलिए प्लीज कॉपी। ठीक है, या तो ये कर लीजिए आप। ठीक है, यस सर। right, next. Relationship between relationship between E naught cell and equilibrium constant. ठीक है, सो आपके पास है ये सबसे पहली बात, एट इक्विलिब्रियम द सेल विल नॉट वर्क, बिकॉज इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
सो बोथ द रिएक्शंस आर हैपनिंग। तो व्हेन बोथ द रिएक्शंस आर हैपनिंग, इसके मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे Zn2 पॉजिटिव से नहीं एनोड से कैथोड जा रहा है, वैसे ही कैथोड से एनोड वापस आ जा रहा है। सो ऑब्वियसली देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, द ई सेल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड वी कैन राइट द नर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर नर्स्ट इक्वेशन will be E cell is equal to E naught cell minus 0.059 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और चीज हम लोग ये कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एक तो ये जीरो होता है एंड ऑल्सो Q इज इक्वल टू के। जो रिएक्शन कोशेंट होता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। सो आई कैन राइट इज log k। नाउ सिंस E cell is equal to zero, is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log k. Now I can write also 0.059 divided by n, ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है ऐसे। E naught cell is equal to 0.059 divided by n log k, है ना। अब log k will be equal to, log k किसके बराबर हो जाएगा, n into E naught cell divided by 0.059। Make sense? Yes or no, please tell me। यस। ठीक है। अब अगर k भी निकालने के लिए बोल देना, सो दिस इज बेस इज 10, 10 टू द पावर दिस मच is equal to k. So the equilibrium constant k will be equal to 10 to the power n into E naught 0 divided by 0.059। Please copy this down। Just give me a second, please। Raise your hand once you're done। चलिए ठीक है, लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो नाउ, है ना। तो इसके साथ ना एक और ये, एक सेकंड, एक और लिख लीजिए, साथ में सवाल हो जाएगा। आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जो कि है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड टी सेल। ठीक है। तो दो आपको याद रखना है, एक तो डेल्टा जी, इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ
ई सेल, और दूसरा क्या है, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. E cell and E naught cell, and N, it has the similar same meaning as usual, number of electrons, and E cell is EMF of the cell, E naught cell is standard EMF of the cell. F is equal to 96500. ठीक है. So this is what F होता है फैराडे का इतना वैल्यू 96500 coulombs per mole. It is basically the charge that is carried by 1 mole of electron. फैराडे क्या है? Charge carried by 1 mole of electron. ठीक है. Also, write one more point. Maximum work done by a cell, it is equal to the mod of delta g. ठीक है. डेल्टा जी तो आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा जब डेल्टा जी नॉट आएगा. डेल्टा जी नॉट, ठीक है. मॉड ऑफ डेल्टा जी नॉट, दैट मीन्स डेल्टा जी की जो भी वैल्यू आए उसको आप पॉजिटिव में रख दे तो वो आपको बता देगा कि द वर्क डन बाय अ सेल. चलिए, नाउ वी कैन डू अ क्वेश्चन. देखिए, दिस इज द टफेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपको दिया जा सकता है. ठीक है. कैलकुलेशन वाइज ऑब्वियसली, कंसेप्चुअली तो सारे के सारे सेम ही रहेंगे. Calculation wise, this will be the toughest. Please copy this down, the question, and I'm lowering your hand right now. Raise your hand once again once you have copied this question. Guys, अच्छा करने लगे क्या? You're doing it, that's nice, but अच्छा, ठीक. चलिए, आई विल डू दिस. पहले आई वुड पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच मैक्सिमम वर्क वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ दिस सेल. ई नॉट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द ई नॉट सेल. सो ई नॉट
cell will be equal to cathode minus anode. So in cathode we have Ag, that is 0.80 minus 0.25. So this will be equal to 1.05 volts. Make sense till here? Yes or no? Please tell me. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास सीधा क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज इक्वल टू, टेल मी, अभी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है, k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर Uh, 10 to the power n e naught by बोलो भाई. 0.059. हाँ, n ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.059. ठीक है. सो फिर से भाई फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं. n कितना होगा इसके लिए जरा बताइए. 2. आई होप यू कैन सी. राइट. Yes, sir. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 डिवाइड बाई 0.059. 059 को ना आप ये करके 0.06 कर लीजिए. ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके. दिस विल बी 0.03. ठीक है. नाउ 105 डिवाइड बाई 3 मेक सेंस? ये सुनो, यही आएगी ना वैल्यू. Yes, sir. ठीक है जरा. ठीक है. सो आई थिंक दिस विल बी डिविजिबल. आपके पास हो जाएगा 13 3 सा एंड देन 5 सा. करेक्ट है. जी बताएं. टेल मी गाइस. ठीक है ना. सो द वैल्यू Yes, ऑफ के sir. इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 35. ठीक है. ऑब्वियसली दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करने में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्टली वैल्यू. ठीक है. सो इट मे बी लाइक 3 into, बट पावर सेम आ गया आपका, देन इट विल बी फाइन. ठीक है. पावर ऑफ के इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके. और क्या, के आ गया आपके पास ना, देन दे आर आस्किंग मैक्सिमम वर्क डन. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 into 96500 इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल टू हाउ मच? 1.05. ठीक है. इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. दी आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इट विल बी इन जूल्स पर मोल. इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी इन जूल्स पर मोल. Once you're done, send the answer on Zoom chat.
Okay, I've got an answer. So both of you are getting the same answer. Yep, correct. 202,650 जूल्स पर मोल। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किलो जूल्स पर मोल में, जनरली है ना, इट विल बी 202.65 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव। आप उसका लिखिएगा मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू 202.65। चलिए एक और सवाल कीजिए, देन वी विल एंड दिस क्लास। By the way, in recent times, this type of question has never been asked, है ना। इसका ध्यान रखिएगा बस आप लोग, घबराइएगा मत। मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा जाता, जनरली वो लॉग केस ही पूछ लेते हैं। जी, चलिए ठीक है, ये सवाल है। ठीक है। अब जो सवाल आते हैं ना, सो दे आर मोर ऑफ लाइक दिस, कि एक ही चीज वो पूछेंगे आपसे, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, दैट्स इट। डू दिस क्वेश्चन। No, you need to send the answer on Zoom chat or WhatsApp once you're done. अच्छा।
ओके, व्हाट, किलो जूल, जूल क्या आया? कृष्ण प्रिया, किलो जूल और जूल? नहीं, कुछ तो गलती है, इतना नहीं आएगा। Arslan, what about you? What is the E naught cell, Krishna Priya, for you? E naught? Yes sir, almost. Yes, Krishna Priya, what is your E naught cell? चलिए देखिए, E naught cell will be E naught. हाँ, Arslan, yours is I think correct. Cathode minus E naught anode. Cathode is cadmium, so cadmium is 0.40 first of all. 0.40 minus anode is 0.76, so minus 0.7676. So this will be equal to 0.40 plus 0.76. It will be 6, सात चलेगा रहेगा, एक पूरा एक 1.16 volts. डेल्टा जी नॉट माइनस में होगा, अरसलान बाय द वे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल. This will be equal to, n will be equal to 2 multiplied by 96500 multiplied by 1.16. 2 into 96500 multiplied by 1.16 is 2 to 3, 880 joules per mole. This will be 2 to 3.88 joules per mole. कृष्ण प्रिया, what happened? कहाँ गलती हुई? यस कृष्ण प्रिया, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. जी, कहाँ गलती हो गई? यस, व्हाट हैपेंड? I calculated the E naught wrong, sir. अच्छा, ई नोट किया आपने, गलत कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एक बार करेक्ट कर लीजिए. लेट मी नो वंस यू आर डन. नेक्स्ट वीक आप लोग की छुट्टी है पूरी, मंडे से लेके फ्राइडे तक? Yes, sir. अभी मंडे ट्यूसडे. अरसलान, व्हाट अबाउट यू? काइंड ऑफ सर, फॉर मी एक्चुअली मैं है ना वो स्कूल जाता हूँ, क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए, 1-to-1 सेशन बायोलॉजी ये सब के लिए। अच्छा, फॉर पीरियड, मतलब फॉर सर्टेन आवर्स? यस सर। अच्छा, तो किस टाइम आप फ्री रहते हैं सुबह में? सुबह से लेके कभी कभी 12 बजे तक या 2 बजे तक, बड़ा टाइम 12 बजे तक ही हो जाता है मेरा। सॉरी, 12 बजे तक सर आप स्कूल में रहते हैं? यस सर, या 2 बजे तक कभी कभी, तो फ्रॉम रियली व्हाट डिपेंडिंग टाइम? ऑन द डे।